everyone is scoring 20 on 20, then only in school also we'll do that. Okay. Okay. Nishant sir. Yes, sir. Yes, sir. I'm done for today's lecture. Good evening, all of you. Namo Namaha. Shubha Sayankalah. So, as you know, we are dealing with the second lesson from past two lectures. A very big and important lesson. This lesson actually tells us how to frame sentences as well as questions in Sanskrit. So, in this particular lesson, there are three parts. First is masculine gender, that is pullingam. Second part is based on strilingam, feminine gender, and the third part is based on neuter gender, which we're going to learn today, that is napunsakalingam. So quickly just revise few things. We have done some vocabularies like chamasah, balakah, vidyut koshah, vrukshah, चषकः सिंहः मेघः तालः दंडदीपः ध्वजः करदीपः etc. ये सब words, all these words are ending in aha, visarga, hence they are termed as pullinga words, masculine words. Okay, after that we have already done with this exercise. Then here we have learned some sentences that like eshah balakah, eshah balakah chalati. So this boy is walking. Eshah is used for masculine gender and whenever the person is nearby you. Then we have learned saha. Saha is again for masculine gender, but whenever the person is from far away. Whenever the person is far away. So for pullingam, there are three important words. Eshah, saha, kaha. Eshah, saha, kaha. Then we have started with स्त्रीलिंगम. तो उसमें हमने कुछ ये वर्ड्स देखे थे लाइक बालिका, दोला, छुरिका, माला, अग्निशलाका, अग्निपेटिका, परिचारिका, सिक्तवर्तिका, गंधवर्तिका and कुंचिका. We have written all these words with meanings. Now we're going to start with the new words like घटी, घटी, कूपी. अभी ये भी फेमिनाइन वर्ड्स ही है, but these words are ending in e and previously जो हमने words देखे all these words are ending in a. यहाँ तक हमने last lecture में stop किया था, complete किया था. We have taken a pause here. We have learned all the words, feminine words ending in a. In this lecture we are starting with the feminine words, strilinga words ending in e, dirgha e, long e. So रश्मि या गौरी, ऐसे जो नाम होते हैं उस तरह के वर्ड्स यहाँ पे है. The words same like girl's name गौरी, रश्मि etc. तो फर्स्ट देखना सब लोग, पहला वर्ड घटी. घटी इज क्लॉक. अगर वो हाथ में पहनने वाला है, रिस्ट वॉच है, तो उसको हम बोलेंगे हस्त घटी. और नॉर्मल वॉल क्लॉक है या फिर ऐसा क्लॉक है अलार्म वाला, तो हम बोलेंगे ओनली घटी. एंड हाथ में पहनने का है तो हस्त घटी. Quickly write it down, also write down the meaning. See, vocabulary is very important. These are the new words except from textbook, which will be there in exercise of course. So please note it down. Ghati is clock, hasta ghati is wristwatch. Okay, let's move ahead. The second one is kupi. Kupi, bucket. Again, observe the ending. E is long, dirgha, always for feminine words. Then we have suchi, is needle, sui. Suchi. तो धागा क्या होता है, थ्रेड क्या होता है, वो हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे, नेक्स्ट जेंडर में, न्यूटर जेंडर में. अभी फिलहाल आपको सिर्फ ध्यान देना है सूची, निडल. देन वी हैव फोर्थ वर्ड करतरी. करतरी, सिजर्स, करतरी.
उसका स्पेलिंग अच्छे से ऑब्जर्व करना स्टूडेंट्स, त के ऊपर हमें रेफ देना है। चलो, we'll move ahead. Next is Dooradhwani, very known word, same has been used in Marathi as well as in Hindi. Dooradhwani, Dooradhwani, landline. Dooradhwani, the and va is combined, is a combined letter, the and va. Okay, then we have Pushpadhani. Pushpadhani. Pushpa is flower, a flower, and Pushpadhani, flower vase or flower pot. चलो, नेक्स्ट है लेखनी. लेखनी, पेन, एंड अंकनी, पेंसिल. लेखनी, पेन, अंकनी, पेंसिल. अंकनी का स्पेलिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट है. देयर इज अ नेजल कॉन्सोनेंट प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर वर्ड, सो प्लीज राइट इट नीट. केयरफुली लिखना अंकनी का स्पेलिंग. ओके, आई होप ये स्लाइड हो गया. विल मूव अहेड. Okay, before starting with this, I want someone to read all the words correctly. Please raise your hands. Yes, Krishna. Ma'am, can I read? Yes, read. घटी, कूपी, सूची, करतरी, दूरध्वनि, पुष्पाधानी, लेखनी, अड़कनी, अड़कनी नहीं, अंकनी. अंकनी. Very good. Thank you so much, Krishna. Thank you, ma'am. Yes, Deepika from Saidham. Yes, ma'am. Yes, read all the words. Yes, miss. घटी, कूपी, सूची, कर्तरी, दूरध्वनि, पुष्पाधानी, लेखनी, अंकनी. 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 Okay. Very good. Okay, miss. Thank you, Deepika. तो इस तरह से आपको ये वर्ड्स जो है डेली रीड करने हैं for more and more practice. Now let's move ahead and understand how to frame a sentence for feminine gender. So last time हमने सीखा था एषः बालकः चलति, एषः बालकः गायति. Likewise, if any person who is feminine, okay, कोई एक गर्ल या लेडी आपके बहुत ही नजदीक खड़ी है, साइड में ही है, तो आप वहां पे यूज करना है हमें एषा. एषा बालिका. तो जो भी यहाँ पे नरेटर है वो ब्लू कलर के शर्ट में है, तो नरेटर हमें यहाँ पे बता रहा है कि एषा बालिका, दिस इज अ गर्ल और हियर इज अ गर्ल. एषा गायति, उसका एक्शन क्या है? सो शी इज सिंगिंग. हियर इज अ गर्ल and this girl is singing. I'm sorry, Esha is this girl is singing. Then question, अभी उसने तो इंट्रोडक्शन दे दिया, तो एंड में हमें क्वेश्चन पूछ रहा है फिर से एक बार रिकलेक्ट करने के लिए. का गायति, who is singing? Ka is again who, but for feminine gender, and the final answer is Esha balika gayati. This girl is singing. Okay, now next है again एशा बालिका, सेम ही है, दिस गर्ल. अगेन यू कैन ऑब्जर्व कि नरेटर जो है, जो हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रहा है, वो बहुत ही नजदीक खड़ा है, उसके साइड में ही है, एंड इसीलिए एशा सती, अगेन शी इज स्माइलिंग. सो हियर इज अ गर्ल एंड दिस गर्ल इज स्माइलिंग. जो मेरे पास में खड़ी है ऐसी लड़की हंस रही है. Then again he is asking us a question, ka hasati, who is laughing or smiling? Then Esha balika hasati, this girl is smiling.
एंड ऑफ कोर्स अगर हमने एशः को एशा बना दिया तो सह को क्या बना देंगे, सा. So whenever the feminine person is far away from you, then you have to say like sa balika, that is a girl. Sa nrutyati, and there is a girl who is dancing. Ka nrutyati, who is dancing? Sa balika nrutyati. Sa balika nrutyati. By now I know you all can easily tell me the meaning that sa balika nrutyati means that girl who is far away from me is dancing. चलो one more example for सा. Again सा बालिका, थोड़ा distance है, एकदम नजदीक नहीं है, दूर है थोड़ी. तो सा बालिका सा लिखती, उसका एक्शन क्या है, लिखती. का लिखती, who is writing? सा बालिका लिखती. There is a girl who is writing or that girl is writing. तो सिंपली स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है. एशः को एशा बनाना है, सह को सा बनाना है और फेमिनाइन जेंडर के सेंटेंसेस रेडी हो जाएंगे. ऑल्सो कह को हमें का बनाना है. फॉर अ क्वेश्चन वर्ड कह इन मैस्कुलाइन, इन फेमिनाइन वी हैव टू यूज एज का. यहाँ पे एक चीज आपने ऑब्जर्व की रहेगी कि जैसे हम लोग मैस्कुलाइन जेंडर में एक्शन वर्ब्स यूज कर रहे थे, वर्ब्स एंडिंग इन टी, लाइकवाइज फेमिनाइन जेंडर में भी सेम ही है. तो अगर मुझे बॉय के लिए बोलना है कोई एक्शन तो भी मैं लिखती ही बोलूंगी और गर्ल के लिए भी लिखती ही होगा. तो एक्शन में वर्ब में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, ओनली प्रोनाउन हैज बीन चेंज. जो भी प्रोनाउन हम यूज कर रहे हैं उसको हमें चेंज करना है एज पर द जेंडर. तो देखते हैं अभी इसका अंडरस्टैंडिंग आपको हुआ है कि नहीं हुआ है. वी हैव सम क्वेश्चंस टू सॉल्व. स्त्रीलिंगम के लिए 3 जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है उनको नोट डाउन करना, जस्ट लाइक लास्ट टाइम आपने किया था वैसे ही. एशा, सा एंड का. एशा for nearby person who is feminine, sa for the person who is far away and feminine, should be feminine, and ka is a question word regarding feminine gender. Esha, sa, ka. Also write down strilingam. स्त्रीलिंगम. लिंग के स्पेलिंग्स बहुत अच्छे से लिखना, थोड़ा डिफिकल्ट है, वहां पे नेजल कॉन्सोनेंट यूज किया है ng. ली के बाद जो कॉन्सोनेंट है उसको हम कहेंगे नेजल कॉन्सोनेंट ng. वो क्या होता है आगे जाके हम लोग एक 7th लेसन में वगैरह सीखने वाले हैं, थोड़ा टाइम है अभी उसमें. सो एशा, सा, का. 3 magical words of स्त्रीलिंगम and 3 magical words of पुल्लिंगम are एशः, सः, कः. चलो देखते हैं ये कितने लोगों को अच्छे से समझा है दोनों भी कॉन्सेप्ट्स. So for that here we have first very simple and a beautiful exercise with a pictures, that is चित्रम दृष्ट्वा वाक्यानि लिखत. अरे अभी अभी जो हमने एग्जांपल्स देखे वही सब कैरेक्टर्स यहाँ पे आ गए हैं. नाउ दिस टाइम जस्ट आपको जो नीचे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, करेक्ट ऑप्शन को अंडरस्टैंड करके आपको हर एक पिक्चर को डिस्क्राइब करना है. सी हाउ सिंपल. Answers are actually given. You have to just match the answers with a correct action or a character. So चलो first वहां पे एक गर्ल दिख रही है and she is writing something, तो उसको हम संस्कृत में कैसे एक्सप्रेस करेंगे? Quickly give me the answer. Yes, many of you are raising your hands. Yes, Shreya from Ghatkopar. Yes, ma'am. छात्रा लिखती. छात्रा लिखती. Very good, Shreya. Thank you so much. So first answer is छात्रा लिखती. Chhatra is a girl student and Likhati writes. Chalo, we want answer for the second one. Smiling girl. Yes, Deven from Saidham. Deven. Hello. Yes, Deven. बालिका हसती. Very good. Balika hasati. Thank you so much. तो स्माइलिंग गर्ल के लिए हम सेंटेंस फ्रेम करेंगे इन संस्कृत लाइक बालिका हसती. वेरी गुड. देन वी हैव थर्ड कैरेक्टर. थर्ड एंड फोर्थ का आंसर एक साथ ही बता दो. वेरी सिंपल.
Yes, Gargi from DN Nagar. Seema Gayatri. Seema Gayati, very good. And the fourth one is Nutrika Nrityati. Nartika. Nartika Nrityati. Very good, very good. Thank you so much, Gargi. तो कुछ इस तरह से हमारे आंसर्स दिखते हैं। छात्रा लिखती, बालिका हसती, सीमा गायती एंड नर्तिका नृत्यति। सो लिखती, हसती, गायती एंड नृत्यति तो आपने सीख लिया है। ओके, तो येलो बॉक्सेस का जो क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम सॉल्व किया था उसमें आपको पता है इसका मीनिंग क्या है। यहाँ पे एक नया वर्ड हमने यूज किया, दैट इज नर्तिका, डांसर। लेडी डांसर होगी, फीमेल डांसर तो हम कहेंगे नर्तिका, और अगर मेल डांसर है तो नर्तकः। नर्तकः फॉर मेल डांसर, नर्तिका फॉर फीमेल डांसर। सीमा इज जस्ट अ प्रॉपर नाउन, किसी का नाम है। चलो, इतने इजी एक्सरसाइज के बाद अभी थोड़ा डिफिकल्टी लेवल 2 पे जाते हैं। लेवल 2 is now we have 3 boxes. Okay, and the question is मंजूषा याः सहायेन वाक्यानि रचयत। मंजूषा अगेन ग्लॉसरी दी हुई है, कुछ बॉक्स दिए हुए हैं, एंड यूजिंग ऑल दीज वर्ड्स आपको छोटे छोटे सेंटेंसेस फॉर्म करने हैं। ओके, ओनली दो वर्ड्स के आपके सेंटेंस रहेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें हर एक वर्ड का मीनिंग अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो इसीलिए अभी क्विकली जैसे जैसे मैं मीनिंग बोल रही हूँ, राइट ऑल द मीनिंग्स इन योर नोटबुक। यू हैव टू राइट डाउन ऑल द मीनिंग्स इन योर नोटबुक। टेक्स्ट बुक में बहुत ही कम स्पेस है, तो वहां पे प्लीज मत लिखना, एकदम मेसी हो जाएगा, बाद में कुछ नहीं समझे। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज यूज योर नोटबुक। हम लोग फर्स्ट बॉक्स जो लेफ्ट साइड में है हरिणः वाला, वो सब पहले लिख रहे हैं। सेंटेंस फ्रेम करने का तो बहुत बाद में आएगा एक्सरसाइज, पहले हमें मीनिंग्स लिखने हैं। ओके, तो हम इसको भी थोड़ा सा एक एक्टिविटी बनाएंगे। मैं आपको मीनिंग नहीं बताऊंगी, आपको ही मुझे कुछ कुछ मीनिंग्स बताने हैं। जो वर्ड नया है ऑफ कोर्स आई विल हेल्प यू। चलो, तो आई एम लोअरिंग ऑल द हैंड्स फर्स्ट एंड नाउ फ्रेशली विल स्टार्ट। आई वांट मीनिंग ऑफ फर्स्ट 2 वर्ड्स, हरिणः एंड गायकः का मीनिंग चाहिए। ऑल्सो उसके साथ आपको नोट डाउन भी करना है जैसे जैसे सब स्टूडेंट्स आंसर दे रहे हैं। यस अथर्व? Yes, ma'am, I am audible. यस, यू आर ऑडिबल। फर्स्ट 2 वर्ड्स का मीनिंग बताना है। Ma'am, Hiranah means deer and Gayaka means male singer. वेरी गुड अथर्व। Thank तो you, ma'am. हिरणः नहीं बोलेंगे हम हिंदी जैसा, हरिणः बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हरिणः। तो क्विकली नोट इट डाउन। हरिणः इज डियर, हिंदी वाला हिरन, एंड गायकः इज मेल सिंगर। ऑफ कोर्स अह इंडिकेट्स मेल, अभी हर टाइम हमें ये मेंशन करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट ये जो लेफ्ट वाला फर्स्ट बॉक्स हम डील कर रहे हैं सब मैस्कुलाइन वर्ड्स है, पुल्लिंग वर्ड्स। ओके, सो थर्ड वर्ड का मीनिंग मैं बताती हूँ। नृपः इज किंग, राजा। न्यू वर्ड फॉर यू, नृपः, किंग, राजा। चलो, now I want someone to tell the meaning of all the pronouns sah, eshah and kah. Quickly tell me the meaning of all 3 pronouns. Yes, Priyal? Yes, ma'am. Meaning of all 3 pronouns, sah, Saha. eshah, kah. Saha means that, it is used for far. Esha means these, it is used for near. Kaha means who or what, it is used for question. Very good. Thank you. Thank you so much, Priyal. So all 3 pronouns are of masculine gender, and जैसे कि उसने हमें बताया, सह is for far away, that, eshah is this, or you can also write down the meaning as there and here, but for masculine, and kah is who.
वॉट मत लिखना, वॉट के लिए और एक वर्ड आ रहा है, तो कह इज हु। ओके, फैंटास्टिक, बहुत अच्छे से आंसर कर रहे हो, वेरी नाइस। नेक्स्ट इज वेरी सिंपल वर्ड, अमितः इज अ प्रॉपर नाउन, किसी बॉय का नाम है। चलो, नाउ आई वांट आंसर फॉर नेक्स्ट टू वर्ड्स, कपोतः एंड मार्जारः। प्लीज एवरीवन पार्टिसिपेट सो दैट आपका ही कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा एंड प्रैक्टिस भी हो जाएगी। यस, चंदन फ्रॉम विलेपार्ले, चंदन। Yes, ma'am. Yes, tell me the meaning of Kapotah and Marjarah. Kapotah is a pigeon and Marjar Marjarah is a cat. is very good. Marjarah is cat. तो कपोतः मार्जारः आपने पहले ही सीख लिया चित्रपद कोश में। थैंक यू सो मच चंदन। Okay, next we want answer for the last two words from masculine. Yes, Devin from Saidham. Hello. Yes, answer for the last two words. Shukah means parrot and Sinha means lion. Very good. थैंक यू सो मच देवेन। तो शुकह पैरट एंड सिंह लायन। आई होप आप सबने मीनिंग नोट कर लिए हैं। लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड बॉक्स फ्रॉम राइट साइड। राइट साइड में जो बॉक्स दिख रहा है उसको हम नंबर 2 देंगे। अगेन ऑल दीज आर नाउन्स, बट दिस टाइम दीज आर फेमिनाइन नाउन्स, स्त्रीलिंग नामानी, स्त्रीलिंग नामानी। चलो, वी वांट आंसर फॉर चटका एंड पिपीलिका। Chataka and Pipilika. Yes, Hitesh from Vileparle again. Yes, Hitesh. Hitesh is not audible. Okay, let's give chance to Deepika. Deepika. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. Chataka and Pipilika. Yes, ma'am. Sparrow, ma'am. Very good. And Pipilika? Pipilika. Don't know, ma'am. Very good, क्योंकि हमने सीखा ही नहीं है। So Pipilika is ant. What about Balika? Balika, girl, ma'am. Okay, thank you so much. So Chataka is sparrow, Pipilika Thank is you, ma'am. ant, and Balika is girl. Vidyarthini is again a simple word. Vidyarthini is student, girl student. Mahila is also a very simple word. Many a times we use this word in Hindi and Marathi. Mahila, lady, woman. Again a new word for you, Makshika, bee. Makhi, bee. हनी बी नहीं बोलेंगे हम लोग, क्योंकि हनी बी के लिए हमें फिर मधुमक्षिका वो है, तो इसलिए या हाउस फ्लाई के लिए भी आप मक्षिका यूज करोगे। इट इज ओके, वन एंड द सेम इन संस्कृत एटलीस्ट। ओके, चलो लेट्स मूव अहेड। वी हैव वर्ड गीता, अगेन अ सिंपल वर्ड, प्रॉपर नाउन है, किसी गर्ल का नाम है। देन वी हैव नदी, सेम वर्ड लाइक मराठी, रिवर, नदी, रिवर। By now, I think you know the meaning of sa, esha, ka. All are pronouns for feminine gender. Sa जब दूर है यूज करना है, esha पास में कोई खड़ा है तब, and ka for asking a question
feminine gender. And we have Shreya. Shreya is again a proper noun. तो हमारे क्लास में भी है श्रेया फ्रॉम घाटकोपर, तो बस गर्ल का नाम है. शिक्षिका इज अ फीमेल टीचर. Okay, now the very important part, the last box. Please write down the meaning of all these verbs. पहला है वदती. I hope 2 बॉक्स हो गए. किसी को पहले 2 बॉक्स में डाउट है? Quickly ask your doubts. I'm waiting for your doubts. कुछ वर्ड मिस हुआ है बॉक्स नंबर 1 एंड बॉक्स नंबर 2 में? नो. ओके, चलो लेट्स मूव अहेड. थर्ड बॉक्स, अभी पूरा ध्यान इधर ही चाहिए. वदती, स्पीक्स. All these are verbs and in present tense. So वदती speaks. थर्ड पर्सन के लिए सब ये जो verbs है वो यूज होने वाले, तो इसीलिए एस एस ऐड करना है, एस और ई एस हर बार. वदती speaks. पश्यति sees, देखना, एस डबल ई एस, sees. और looks. Yes, Rushil, what is your doubt? Teacher, Yes. teacher, you told that Geeta is a name. So did the Geet mean song? Yes, Geeta is song, but वो हम न्यूटर जेंडर में देखने वाले हैं. In this, Geeta is a name of girl. Okay, thank you, teacher. Yes, most welcome, Rushil. तो रुशि का डाउट बहुत ही अच्छा था, क्वाइट इंटेलेक्चुअल डाउट. ऑफ कोर्स वो हम सीखने वाले हैं. ओके, लेट्स फोकस ऑन द वर्ड पश्यति, सीज. नेक्स्ट है पतति, फॉल्स, गिरना, नीचे गिरना. पतति फॉल्स. हसति, स्माइल्स. हसति स्माइल्स. हंसना. देन वी हैव खादती. बहुत सिंपल है, आपको पता है मीनिंग क्या है. ईट्स. सब लोग प्लीज नोट करना फटाफट जो भी मीनिंग बता रही हूँ. ओके, नेक्स्ट है पिबती, ड्रिंक्स. पिबती ड्रिंक्स, ड्रिंकिंग वाटर. पिबती. देन वी हैव वसती, रिसाइड्स, लिव्स और रिसाइड्स. जैसे कि आपको अगर सेंटेंस फ्रेम करना है कि आई लिव इन मुंबई और आई लिव इन घाटकोपर एक्सेट्रा, तो आपको ये यूज करना है वसती. लिव्स और रिसाइड्स. देन वी हैव कथयति. कथयति नरेट्स, नरेटिंग अ स्टोरी और टेलिंग अ स्टोरी. सो टेल्स और नरेट्स. कथयति, कथन करना. Going down, Shreya, going down is not a meaning of patati. Patati is falls, गिर जाना. कोई चीज नीचे गिर गई तो हम बोलते हैं पतती. Okay, so let's focus on the word namati. Namati, salutes, salutes और bow down, नमस्कार करना. Then we have word vahati. Vahati means flows. तो रिवर के लिए बेसिकली ये वर्ड हमें यूज करना है, या फिर एयर के लिए हमें ये वर्ड यूज करना है. विंड, एयर, रिवर. वहती, फ्लोज, बहना. देन वी हैव गायति, सिंग्स. गायति सिंग्स. गीतम गायन्ति, गीतम गायति,
sings a song. मधुरा गीतम गायति, मधुरा sings a song. ऐसे यूज करना है. ओके चलो लेट्स मूव अहेड. चलती चलना, वॉक्स. उपविशति सिट्स, बैठ जाना, बैठना. आई होप यहाँ तक हो गया. ओके लेट्स मूव अहेड. क्षिपति थ्रोज, फेंकना. कोई चीज हमें फेंकनी है, जैसे कि व्हाइल प्लेइंग वी थ्रो द बॉल और रिंग, तब हमें ये वर्ड यूज करना है. क्षिपति थ्रोज, फेंकना. Yes, Atharva, I'm coming towards your doubt. Just wait. हितेश, उपविशति is sits, बैठना, नीचे बैठ जाना. उपविशति. आपने बाहुबली अगर देखा रहेगा, बाहुबली कंक्लूजन सेकंड वाला पार्ट, तो उसमें ये वर्ड यूज हुआ है उपविश. जब वो भल्लाल देव का राज्याभिषेक का सीन दिखाया है तब ये वर्ड यूज होता है उपविश. उपविश सिट, बैठना. और एक वर्ड फ्रॉम बाहुबली आगे आ रहा है, दैट इज उत्तिष्ठति, गेट्स अप, उठ जाना, उठकर खड़े होना. उत्तिष्ठति, वेक्स अप और गेट्स अप. उत्तिष्ठति का ही स्मॉलर वर्जन है तिष्ठति, स्टैंड्स. एक ही जगह पर खड़े रहना. या फिर आप गाड़ी या आपका कार या मोटर बाइक जब पार्क करते हो तो हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? तिष्ठति. जस्ट कोई ऑब्जेक्ट स्टैंडिंग है या हम खुद खड़े हो गए तो हमें यूज करना है तिष्ठति, स्टैंड्स. उत्तिष्ठति गेट्स अप एंड उपविशति सिट्स. ये सब वर्ड्स मेनी टाइम्स सैन्य जो होता है बैटल फील्ड पे, उसके लिए यूज किए जाते थे, उनको ऑर्डर्स देने के लिए. सोल्जर्स को ऑर्डर्स देने के लिए ये सब संस्कृत वर्ड्स यूज किए जाते थे. ओके, अ वेरी सिंपल वर्ड आफ्टर दैट, गच्छति गोज, आगच्छति कम्स. ऑपोजिट वर्ड्स है, एंटोनिम्स. गच्छति गोज, आगच्छति कम्स. Then comes the Atharva's doubt, that is the word Brahmati. Brahmati means घूमना, wandering or roaming here and there. So Brahmati can be used in case of bees. Makshika Brahmati, bees are roaming here and there. और विमानम Brahmati, plane जो है वो घूम रहा है. या फिर in case of birds also you can use word Brahmati. इधर उधर घूमना, वॉन्डरिंग और रोमिंग. ऑफ कोर्स आप पर्सन के लिए भी भ्रमति वर्ड यूज कर सकते हो, वॉज वॉन्डरिंग ऑन सम स्ट्रीट एक्सेट्रा. तो धीरे धीरे आप थोड़े थोड़े वोकैबुलरी इंक्रीज कर रहे हो. एंड द लास्ट वर्ड वेरी सिंपल जो हमने ऑलरेडी सीख लिया लास्ट लेक्चर में, गर्जति इज रोअर्स. इन केस ऑफ सिंह यू हैव टू यूज दिस, और इन केस ऑफ क्लाउड्स गर्जति, रोअर्स. मेघः गर्जति और सिंहः गर्जति. ओके, सो आई होप आपको मीनिंग क्लियर है. अभी बस मैं क्विकली कुछ आपको सेंटेंस बताती हूँ, देन आपको बाकी सब सेंटेंस जो है, यही तो आज का आपका होमवर्क रहेगा कि आपको हर एक वर्ड के लिए सेंटेंस बनाना है. मतलब हर एक मैस्कुलाइन वर्ड के लिए और हर एक फेमिनाइन वर्ड के लिए. तो 11 मैस्कुलाइन वर्ड्स आर देयर, तो 11 आपके सेंटेंसेस बन जाएंगे फॉर लेफ्ट साइड वाला बॉक्स, हरिणः गायकः वाला. एंड देन 13 sentences for feminine. So 11 and 13 sentences आपको घर पे बनाने हैं as a homework. बट कैसे बनाने उसके कुछ एग्जांपल्स मैं दे रही हूँ. देखो कैसे बनाना है. सिंपली मैं लेफ्ट साइड के बॉक्स से एक वर्ड लूंगी एंड उसके साथ आई विल अटैच वन वर्ब. जैसे कि हरिणः पश्यति, कोई भी वर्ब ले सकते हो बट द सेंटेंस शुड बी मीनिंगफुल सेंटेंस. जैसे कि मैं ऐसे नहीं बोल सकती कि हरिणः वहति, डियर फ्लोज,
ओके, मीनिंगलेस सेंटेंस हो गया, बट आई कैन यूज हरिणः पश्यति, हरिणः खादति, हरिणः धावति, हरिणः चलति, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जो आपके वर्ब्स है वो रिपीट हो सकते हैं, वर्ब्स आप जो है वो रिपीटेशन उसमें दिखाई देगा, बट ऊपर के जो आप नाउन्स यूज करने वाले हो, हर एक नाउन के लिए एक सेंटेंस, डिफरेंट सेंटेंस चाहिए। जैसे कि मैं ऐसे नहीं कर सकती सह चलती, एषः चलती, कः चलती, वेरी रॉन्ग। हर के लिए आपको अलग अलग वर्ब यूज करना है। तो यू कैन यूज सह पिबती, एषः वसति, कः चलती, ऐड क्वेश्चन मार्क आफ्टर कः। ओके, अलग अलग वर्ब्स यूज करना, वर्ब्स रिपीट होने ही वाले हैं, बट नाउन रिपीट नहीं होना चाहिए। एक नाउन के लिए एक अलग नया सेंटेंस चाहिए। Okay, few more examples from feminine gender like Chataka pibati, sparrow is drinking water. Then Pipilika khadati, Balika gayati, Nadi vahati, Makshika भ्रमति. Okay, तो ऐसे सब sentences आपको बनाने हैं. On this point, we'll stop here and we'll continue for the next lecture. Thank you so much, students, and Punar Milamah.